स्वामीनारायण भगवान की, सतपंथ सनातन धर्म की, सब संतन की, कुलदेवी उमिया मात की। खूब खूब धन्यवाद। आजना
આ શ્રીમદ ભાગવત દશાવતાર જ્ઞાન યજ્ઞ પારાયણના ચોથા દિવસના સુપ્રભાતે મંગલમય દિવસે પૂજ્ય સંતો અહીં ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે, તો આપણે પ્રથમ પૂજન કરીશું. તો ચંદનથી તિલક પૂજન કરવા માટે જયંતિભાઈ તથા પ્રવીણભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોથીજીનું અને પૂજ્ય સંતોનું ચંદન તિલકથી પૂજન કરશે. અપરિતાસનમ ઉદવેદમ દેવાનો યદાયુષદામિ ત્વે યસ્મત્મનો પ્રાયો વો રક્ષિતારો દિવે દિવે દેવાનમ ભદ્રસુમતિરે યુયાતમ દેવાનમ ગૌ રતિરભેનો નિર્વતામ દેવાનમ ગૌ શમયુપસે દેવાશ્વમ દેવાનડાયો પ્રતિરંદસુ જીવસે તાન્યમ પૂર્વજાનિ વિદાહ સોમો મહી સ્વાહા સરસ્વતીનમ શુભંગભાસ્કરંસ્ત વાસ્મિશ્વના વિષ્ણુસ્તનંધીષણાયુવયમ તમી સ્વાહાનો ગ્રતિસ્થસ્યયુઃ યસ્વતી નિધિ જિન્વામવશે ભૂમહેવયમ પુખાનો યથા વેદમ શ્યામો વેદો રક્ષિતા પાયુઃ પ્રબંધં તસ્મૈ સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃધસવા સ્વસ્તિ ન પૂષા વિશ્વવેદા સ્વસ્તિ નક્ષરક્ષો અરિષ્ટનેમિ. પુષ્પમાળાથી પૂજન કરવા માટે જયંતિલાલ મનજી ચોપડા સાથે શારદાબેન જયંતિલાલ ચોપડા અને સાથે દીકરી જીનલ પણ આવશે પોથીજીના પૂજન કરવા માટે. ભાગવત ભગવાન કી જય. માલ્યાદિની સુગંધેની માલ્યાદિની વૈ પ્રભો મયા નિતાની પુષ્પાણિ પદાર્થમ પ્રતિગમ પૂર્વશ ભાગવત દેવતાય નમઃ પુષ્પમાલાય પુષ્પાણિ સમર્પયામિ. શ્રીખલમ ચંદનમ દૈવ્ય ગંધનો સુનોરમ વિલેપનમ સુરશ્રેષ્ઠમ ચંદનમ પ્રતિગૃહીતમઃ. નમોસ્તનંતાય સહસ્રમૂર્તે યચપોરોખાયમ પાદૌષ વિશ્વભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યમૃતં. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. હવે પરમ પૂજ્ય જયરામદાસજી મહારાજ શ્રી નિષ્કલંકી ધામ મહંત પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરવા માટે પ્રવીણભાઈ રવજીભાઈ ચોપડા સાથે સુનીતાબેન પ્રવીણભાઈ ચોપડા, પ્રેમદાસ બાપુનું પુષ્પમાળાથી પ્રકાશભાઈ રવજીભાઈ ચોપડા સજોડે આવી જશે. અને માતાજી લક્ષ્મામાં એ પણ સાથે આવશે પોથીજીના આશીર્વાદ લેવા માટે. હિરલકુમાર જયંતિલાલ રવિદાસ મહારાજને પુષ્પમાળા અર્પણ કરશે. હિરલ સાથે દક્ષને પરમ પૂજ્ય જય ભગવાન બાપાને પુષ્પમાળા અર્પણ કરશે. દક્ષ ઉભરજો. રવિદાસજી મહારાજને જય ભગવાન બાપાને ઓલી બાજુ. હિરલ દક્ષ ઓલી બાજુ. બોલો સદગુરુ દેવ કી. બોલી બે બાજુ. રવિદાસજી મહારાજ અને જય ભગવાન બાપા દક્ષ કુમાર. શાંતિદાસજી ભગત ગોતા કંપા અખંડ આનંદ કુટીર આજના આખા દિવસના મિનરલ વોટરના દાતા શ્રી ગોવિંદભાઈ મનજીભાઈ ચોપડા સાથે સુમિત્રાબેન ગોવિંદભાઈ ચોપડા આવશે. પૂજ્ય શાંતિદાસજી ભગતનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે અને પોથીજીના આશીર્વાદ લેશે.
ગોવિંદભાઈ મંજીભાઈ ચોપડા સાથે સુમિત્રાબેન ગોવિંદભાઈ. બોલો સદગુરુ દેવ કી. લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપા ડાયા બાપા અને માતૃશ્રીનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન પૂજન કરશે સુનીતાબેન પ્રવીણભાઈ રવજીભાઈ ચોપડા સજોડે. આવી જાઓ પ્રવીણભાઈ. સુનીતાબેન આવી જશો. લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપા પૂજ્ય વડીલ અને માતૃશ્રીને પુષ્પમાળાથી પૂજન. શામજીભાઈ વાલજીભાઈ ભૂદેવ શ્રીનું પુષ્પમાળાથી, મુખી મહારાજ શ્રીઓનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરશે વિનોદ કુમાર હીરજીભાઈ વાસાણી, તુલસીદાસ પ્રેમજીભાઈ પોકાર, શૈલેષ દિનેશભાઈ પોકાર, ગિરીશ કુમાર રતિલાલ પોકાર અને હરિલાલ સોમજી ચોપડા આ પોકાર. હરિલાલ સોમજી ચોપડા આ પોકાર. આવી જશો ભાઈ. ચલો પુષ્પવાળા ત્યાં છોટા બોલતી જે 5 ભાઈઓ નામ બોલ્યા. પૂજ્ય માતૃશક્તિ સાધ્વી શ્રી ગોમામાં, માતૃશ્રી પાનુમાં, માતૃશ્રી મીનામાં, સાધ્વી શ્રી જ્ઞાનભાઈ સર્વે સાધ્વીઓનું માતૃશક્તિનું પુષ્પમાળાથી અભિવાદન છૂટા બોલતી અભિવાદન કરશે શારદાબેન જયંતિલાલ ચોપડા. શારદા બપોરના મુખ્ય ભોજનદાતા, જે આજના બપોરના મુખ્ય ભોજનદાતા છે તે પરિવાર આવશે. દેવજીભાઈ કેશરાભાઈ છાભૈયા, પરબતભાઈ દેવજીભાઈ છાભૈયા, પ્રેમચંદભાઈ દેવજીભાઈ છાભૈયા સહપરિવાર આવશે. આશાપુરી સર્વિસ ડોંબીવલી મુંબઈ આજના બપોરના મુખ્ય ભોજનદાતા. કચ્છમાં મમાઈ મોરા ડોંબીવલી મુંબઈ, ત્યાં વ્યાસપીઠ ઉપર પૂજ્ય મહારાજશ્રીનો વ્યાસાસને આશીર્વાદ લેશે. પુષ્પમાળા દેજો ભાઈ. આજના મુખ્ય ભોજનદાતા બધું. હવે આરતી માટે મુખી ગ્રુપ સજોડે આવી જશે. ભવનભાઈ કરશન પોકાર, મહેન્દ્રભાઈ કરશન પોકાર, રવજીભાઈ રામજી પોકાર, મણિલાલ ગોપાલ રામાણી, વાડીલાલ ગોપાલ રામાણી, મોહનલાલ રાજા પોકાર, જયંતિલાલ છગનભાઈ પોકાર, પ્રવીણભાઈ રાવજી પોકાર, પુરુષોત્તમ રાવજી પોકાર, નગીનભાઈ રાવજી પોકાર, લખનસિંહ મણિલાલ પોકાર, અરવિંદભાઈ કરમસિંહ વેલાણી, દિનેશભાઈ ખેતા પોકાર, તુલસીદાસ પ્રેમજી પોકાર મુંબઈ, વિનોદ હીરજી વાસાણી મુંબઈ સજોડે આવી જશે આરતી માટે. समर्पयामि भूमि निष्कलङ्के नारायण गुरुदेव भगवान्
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण भगवान की जय। सतपंथ सनातन धर्म की जय। આજના આ શ્રીમદ ભાગવત સાવતર જ્ઞાન યજ્ઞના ચોથા દિવસના સુપ્રભાતે વ્યાસાસને વિરાજમાન પરમ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી જનાર્દન હરિજી મહારાજ શ્રીના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। પરમ પૂજ્ય જયરામદાસજી મહારાજના શ્રી ચરણોમાં વંદન। પ્રેમદાસજી બાપુ, શાંતિદાસજી ભગત, રવિજીદાસ બાપુ, જય ભગવાન દાસ બાપા, સર્વ मुखी महाराज श्रीओ, लक्ष्मी नारायण स्वरूपा, मातृशक्ति, समाजना अग्रणीओ, वडीलो, माताओं, बहनों, युवान भाईओ, नाना मोटा सर्व आ समियाणामां उपस्थित भाविक भक्तजनों श्री चरणों में वंदन। आज जियापत सतपंथ कचकड़वा पाटीदार सतपंथ सनातन समाज वती आप सौ भाविकों हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करीए छीए। अने हवे परम पूज्य व्यासासने महाराज श्रीना श्री चरणों में वंदन करी प्रार्थना कि हवे पछीनो दौर आप संभाळशो। पूज्य महाराज श्री। देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पार्वती पते हर हर महादेव हरे। स्वरूपे हृदय विराजो, जनिते स्वरूपे हृदय विराजो। प्रभु मारो वंदन, गुरु मारो वंदन, प्रभु मारो वंदन, गुरु मारो वंदन,
मटेवा अर्जी हमारी सुनो रे मुरारी अर्जी हमारी सुनो रे मुरारी समाज एकता अखंडित राखो स्वरूप हृदय मांग राखो स्वरूप हृदय मांग राखो प्रभु गुरु प्रभु ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। ओम नमो निष्कलंकी नारायण जनार्दना भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। हरि ओम। मॉनिटर दे। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम्। श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की, श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की, श्री सतपंथ सनातन धर्म की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, पवन सूत हनुमान की, पंढरीनाथ भगवान की, आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की, जगत गुरु नानक दास महाराज की, गुरु जगन्नाथ महाराज की, कुलदेवी उमिया मात की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सब संतन की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। एक बहुत अच्छी बात हमने पढ़ी जो आपके सामने रखना चाहेंगे। कोઈએ પૂછ્યું कि प्रेम શું છે? જવાબ કંઈક એવો મળ્યો, સવારમાં ઉઠીને આંખો ખોલતા પહેલા કોઈનો ચહેરો જોવાની ઈચ્છા થઈ જાય એ પ્રેમ છે। સવારે ઉઠતા પહેલા આંખો ખોલતા પહેલા કોઈનો ચહેરો જોવાની ઈચ્છા થઈ જાય એ પ્રેમ છે। મંદિરમાં દર્શન કરતી વખતે મંદિરમાં દર્શન કરતી વખતે પડકે કોઈ ઊભું છે એવો આભાસ થાય એ પ્રેમ છે। આખા દિવસનો થાક જેની સાથે બેસવાથી કલ્પના માત્રથી ચાલ્યો જાય એ પ્રેમ છે। માથું કોઈના ખભા પર મૂકીને લાગે છે જીવન હળવું થઈ જાય એ પ્રેમ છે। અને આ ગઝલ વાંચતા વાંચતા તમને જેની યાદ આવી જાય એ પ્રેમ છે। जीवन का मतलब ही प्रेम है, प्यार है। जीवन में सारी चीजें मिल जाए
सब कुछ मिल जाए, लेकिन जीवन में अगर प्रेम ना हो, जीवन में अगर प्यार ना हो, तो जीने की मजा नहीं आती। सब कुछ हो घर में, रहने के लिए घर हो, घूमने के लिए गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, सारी व्यवस्था हो जीवन में, लेकिन अगर आपके जीवन में प्यार न हो, प्रेम न हो, तो जीवन जीने की कोई मजा नहीं। इसलिए जीवन को संपूर्ण बनाना है, जीवन को आनंद से भरना है, तो प्रेम जरूरी है। आप प्रेम से जी पाते हो। प्रेम से ही जी सकते हो। और ये प्रेम जीवन में तब आता है जब हम औरों के ऊपर प्रेम करते हैं। हम सबको लगता है कि ये दुनिया वाले सब के सब हमसे प्यार करें, हमारे परिवार में जो है वो सब के सब मेरे ऊपर प्यार करें, लगता है कि नहीं? लेकिन ये कब होगा? जब हम उनकी ओर प्यार करेंगे, हम उनके साथ प्यार करें। आप बीज बोते हो बबुल का, तो आम का पेड़ उगने वाला नहीं है। इसीलिए अगर आपको आम चाहिए तो बीज भी आपको आम का लगाना पड़ेगा। इसी तरह अगर सब के साथ प्यार की अपेक्षा रखते हो तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। और ये भगवान का चरित्र हमारे हृदय में प्रेम को भर देता है। संतों का चरित्र हमारे हृदय को प्रेम को भर देता है, और प्रेम ही हमारे जीवन की श्वास है। प्रेम से ही हम जी सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि एक दिन भोजन न मिले ना तो हम जी सकते हैं, 2 दिन भोजन न मिले तो हम जी सकते हैं, लेकिन जिस दिन प्रेम न मिले, प्यार न मिले, हम जी नहीं पाते। इसलिए ये प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। सब के ऊपर हमने प्रेम करना चाहिए। थोड़ी इको की इफेक्ट दे। कब तक? अभी शाम तक चलाओगे ये एडजस्टमेंट? इसीलिए प्रेम ही हमें जिलाता है। प्रेम से ही हम जी पाते हैं। तो ये प्रेम आपके जीवन की संपत्ति है। आपका सब कुछ प्रेम है, और ये मिलेगा जब आप दूसरों को दोगे। सम्मान तब मिलता है जब हम औरों को देते हैं। कल्याण हमारा तब होता है जब औरों का करते हैं। एक दिन है ना, विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के पास गए, और विवेकानंद जी ने कहा कि हे रामकृष्ण जी, मुझे ध्यान सिखा दो, मुझे मेरी कुंडली जागृत करवानी है, मुझे मोक्ष पाना है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अरे मूर्ख, विवेकानंद को कहा था चल भाग यहां से। मुझे ये नहीं पता था कि तू स्वार्थी भी है, और आज पता चला कि तेरे अंदर स्वार्थ बढ़ा पड़ा है। अरे मूर्ख, यहां से भाग और वापस मेरे पास मत आना। विवेकानंद जी को कहा रामकृष्ण जी ने, यहां से भाग, आज से तू मेरा शिष्य नहीं। मोक्ष पाना चाहता है, ध्यान लगाना चाहता है, आज से तू मेरा शिष्य नहीं और मैं तेरा गुरु नहीं। यहां से भाग।
तो विवेकानंद जी शरण गए और विवेकानंद जी ने माफी मांगी। अब ठीक है, आप हमारी ओर ध्यान मत देना, मेरी शब्दों पर देना। ये हमारा झगड़ा आपका कुछ फायदे वाला नहीं है। मैं उनसे बात करता हूं तो आप भी उधर देखते हो। आपसे मतलब मेरे से है, आपसे आपका। और क्या ये मंडप इतना बड़ा बन चुका है तो फिर ये कवर करने में भी तो कसरत पड़ती है कार्यकर्ताओं की। कार्यकर्ताओं को भी क्या पता था कि ये हाउसफुल हो जाएगा, ओवरफ्लो होगा। चलो एक बार ताली तो बजा दो सबके सब। ये ताली आपके लिए थी। मैं अकेला था इसलिए आपसे बजवा ली। आपकी श्रद्धा को नमन करते हैं, आपके विश्वास को, आपके भक्ति को नमन करते हैं। विवेकानंद जी के ऊपर गुरुदेव नाराज हो गए, चल भाग यहां से मूर्ख, और आज के बाद मेरे आश्रम आना नहीं। बोले महाराज क्या गलती हो गई, हमें बताना जरा। बोले मोक्ष पाना चाहता है, ध्यान लगाना चाहता है, स्वार्थी कहा का, खुद का कल्याण सोचता है, खुद के बारे में सोचता है, खुद की मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। मूर्ख, ऐसे शिष्य का कोई संबंध नहीं है मेरे साथ, चल भाग यहां से। मुझे तो ऐसा शिष्य चाहिए था जो खुद का नहीं, जो औरों का कल्याण करे। मुझे तो ऐसा शिष्य चाहिए था जो खुद के मोक्ष के लिए नहीं, जो औरों के मोक्ष के लिए कुछ करे। अरे खुद के लिए तो हजारों जीते हैं विवेकानंद, और तो खुद के लिए जीना चाहता है। अरे औरों के लिए कुछ कर, चल भाग यहां से और वापस आना मत। स्वार्थी कहा का, ध्यान लगाना चाहता है। यहां संस्कृति के ऊपर आक्रमण हो रहा है। संस्कृति संस्कार खतरे में है, वैदिक धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। आक्रमण हो रहा है, खोखला हो रहा है, युवाओं में व्यसन हो रहे हैं। वेदों का जो रास्ता है, लोग भटक रहे हैं, उनको रास्ते पर लेकर आ। वैदिक धर्म का प्रचार कर, देश नहीं विदेशों में जाकर भी, और युवाओं में एक ताकत भर दे, आत्मविश्वास भर दे युवाओं में। देश के लिए जीने की एक तड़प जगा दे उनके हृदय में, तो तू मेरा शिष्य है। ध्यान कहां लगाने बैठा है? आज ध्यान लगाने का समय नहीं है विवेकानंद। आज इस फंदे में पड़ने की जरूरत नहीं है। आज सोचना पड़ेगा जिस राष्ट्र में रहे हो, राष्ट्र का क्या हाल है। अरे राष्ट्र बचेगा तो तू बचेगा विवेकानंद। पहले तो राष्ट्र को बचाना, गौ माता को बचाना, समाज को बचाना। क्योंकि परमहंस को लगा कि ये खुद के मोक्ष के बारे में सोच रहा है ना, अरे ये तो स्वार्थी है। औरों के बारे में सोच, औरों के लिए जीने की कोशिश कर। और तब से जो तड़प जगी है विवेकानंद के हृदय में। मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है? मुक्ति का मतलब है विवेक, मोक्ष का मतलब है विवेक। विवेक मोक्ष है। विवेक को पालो, मोक्ष मिल गया। विवेक को पालो, मुक्ति मिल गई। मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय। अगर कुंडली जागृत भी करवा देते हो, अगर साधना भी प्राप्त कर लेते हो, लेकिन उसके बाद अगर किसी चीज में आसक्ति बाकी रह जाती है, मोह बाकी रह जाता है, तो काहे का मोक्ष मिला? लेकिन आप संसार में हो, रहे हो संसार में, एक साधारण जीवन जी रहे हो। हर रोज सुबह उठने के बाद जो जिम्मेदारियां सामने आ रही है, निभाते जा रहे हो। हृदय में किसी के प्रति कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी की ईर्ष्या नहीं, किसी की निंदा नहीं। बस भगवान सबका कल्याण करे, यही भाव हृदय में है, तो तुझे मोक्ष मिल चुका है। हर एक परिस्थिति में, हर पल, जो भी परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, अगर आप खुश रह सकते हो। एक दिन हाथी, एक दिन घोड़ा, एक दिन पैदल चलना जी, सदा मगन में रहना साधु, सदा मगन में रहना। जिसको सदा मगन में रहना आ जाए, समझना उसको मोक्ष मिला है। हाथी के ऊपर भी बैठा तो बस खुश, एक दिन घोड़े के ऊपर बैठने मिला खुश, एक दिन पैदल चलने मिला फिर भी खुश, एक दिन
4 बार भोजन मिला, खुश। लेकिन 8 दिन हुआ, कुछ मिला नहीं, फिर भी खुश। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मोक्ष ये है कि भगवान की मर्जी से जीना, ये मोक्ष, ये मुक्ति। मुक्ति का मतलब है बंधन से मुक्त हो जाए, रहो संसार में, अपने पत्नी से प्यार करो। कल हमने कहा था कोई नो नहीं, इसका मतलब क्या पत्नी को छोड़ दोगे? इसका मतलब क्या पति को छोड़ दोगे? इसका मतलब क्या बच्चों से नफरत करोगे? इसका मतलब ये नहीं होता, लेकिन इसका मतलब होता है सब में भगवान को देख लिया करना। कोई नो नहीं का मतलब है कि आखिरी में तो भगवान ही काम आएगा, तो उनमें भगवान को ही देखना, भगवान जैसे मानना उनको। प्यार करना, जरूर पत्नी से प्यार करना, जरूर पति से प्यार करना, सास ससुर से, परिवार से जरूर प्यार करना, लेकिन उसके बंधन में अटकना मत। रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। न जग को त्यागो, न हरि को भूल जाओ, जिंदगानी में रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। एक बात याद रखना, अगर आप किसी के बाप हो, किसी की माँ हो, और आप ध्यान करने बैठ गए और घर में बेटे को तकलीफ है, बेटे को आपके प्यार की जरूरत है, वो संकट में है, चिंता में है, आपके साथ बैठना चाहता है, आपके साथ बातें करना चाहता है, तब आपका ध्यान, साधना, भक्ति वो होनी चाहिए कि उसको गोद में बिठाना, उसके सिर के ऊपर हाथ रखना, पूछना बेटा चिंता मत कर, अपना है ना भगवान, चिंता की कोई बात नहीं। ये आपकी साधना होगी। इसीलिए मुक्ति का मतलब है कि मुक्त हो जाना, विवेकी बन जाना। जैसे कि राजा जनक थे, जनक विवेकी थे। अष्टावक्र मुनि जब आते थे तो अष्टावक्र मुनि के साथ शास्त्रार्थ करते थे। जनक जी थे तो राजा, थे तो शादीशुदा, थे तो संसार में, उनकी ही सुनैना पत्नी, उनकी ही बेटी जानकी थे संसार में, संसार कर रहे थे। मुझे बताओ, जनक विरक्त थे, मतलब जीते जी मोक्ष पाया था, जीते जी मुक्ति को अनुभव कर रहे थे जनक, तो क्या राज्य छोड़ा? पत्नी को कभी बोला मुझे तेरे में अटकना नहीं है? नहीं बोला। बेटी की भी धूमधाम से शादी बनाई, विवेकी थे। जब अष्टावक्र आ जाते थे तब भूल जाते थे राजा है, और जब राज्य चलाना था तब याद रखते थे मैं राजा हूं। जब बेटे से बात करनी थी, जब बेटी से बात करनी थी तो पता था मैं बाप हूं, जब पत्नी से बात करते थे पता था मैं पति हूं। ये जिम्मेदारी कैसे छोड़ सकते हो आप? मुक्ति का मतलब है मुक्त हो जाना। एक दिन जनक जी स्नान कर रहे थे नदी में, एक महात्मा जी भी उनके वहां आए हुए थे, दोनों स्नान कर रहे थे। जब स्नान करते करते तब स्नान करते करते महात्मा भी स्नान कर रहे, जनक जी भी स्नान कर रहे। उतने में एक सेवक आया भागते भागते, और सेवक ने कहा महात्मा जी, जनक जी, अपने महल को आग लगी है, अपने राज्य को आग लगी है, चलो जल्दी जल्दी। जनक जी सूर्य की साधना कर रहे थे। अब महात्मा देख रहा है कि अरे ये जनक जी तो चल भी नहीं रहे, आग लगी है, इसको कोई चिंता भी नहीं। सेवक पुकार रहा था कि जनक जी, राजा जी चलो, अपने महल को आग लग चुकी है। अब उसके वहां जो महात्मा अतिथि बन के आया था ना, जनक तो नहीं भागे, महात्मा भागा। भागा भागा सेवक ने पूछा कि अरे जिसका महल जल रहा है वो नहीं भागा, भाग कर रहा है, और तू क्यों भाग रहा है? बोले मैं जहां रहता हूं ना ऊपर के मजले में, वहां दोरी के ऊपर मेरे कपड़े सुखाने के लिए डाले, वो जल जाएंगे तो। ये मोबाइल बंद करो यार।
जिसका महल जल रहा है वो जब साधना में था तो कुछ लेना देना नहीं, इसको कहते विवेक। और जिसके खाली कपड़े जलने वाले थे वो भागने लगा। था महात्मा, तो सही अर्थ में महात्मा कौन था? जनक जी। विरक्ति मन में होनी चाहिए। एक दिन दो सन्यासी जिनका नियम था श्री की ओर देखना नहीं, श्री को स्पर्श करना नहीं, एक दिन कहीं गांव में गए थे तो नदी का प्रवास कर रहे थे। नदी का प्रवास करते करते जब आगे जाने लगे, आगे जाते समय सामने से एक स्त्री वहां से आ रही थी। जब आते आते उस स्त्री को देखा तो वो बहने लगी। उसको तैरना आता नहीं था तो बहने लगी। अब दोनों सन्यासी ने तो उसकी ओर देखा नहीं पहले, क्योंकि देखना नहीं, बचाने का तो मन हो रहा था। ध्यान में बात आ गई कि ये जो बहन है वो बही जा रही है। उसमें से एक सन्यासी ने सोचा कि अरे अगर ये बह गई तो बहुत बुरा होगा, और हमारे सामने अगर ये ऐसा हुआ तो वो गलत होगा, इसीलिए हमने इसको बचाना चाहिए। तो एक सन्यासी ने क्या किया, नियम तोड़ दिया। भागते भागते उस बहन के पास पहुंचा, उसको दोनों हाथों में उठाया और किनारे पे लाके छोड़ दिया। आगे चलने लगा। अब जो दूसरा था जिसने उसकी ओर देखा भी नहीं, चलते चलते सोच रहा था कि अरे आज इसकी तपस्या तो भ्रष्ट हो गई। चलते चलते 3-3.5 किलोमीटर वो चले। अब तक कुछ बोला नहीं जो दूसरा था ना, लेकिन अब बोला। अब आश्रम के नजदीक आ चुके थे। उसने बोला कि अरे अब गुरुजी जो है ना तेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले अपना नियम था कि श्री को स्पर्श करना नहीं, और तूने तो आज श्री को गोद में उठा लिया, हाथों पे उठा लिया और किनारे पे रखा। अब गुरुजी क्या सोचेंगे? तो जिसने उठाया था ना उसने कहा अरे मैंने तो उसको उठा के वही छोड़ दिया किनारे पे, 3 किलोमीटर तक तो तू ले आया उसको। मैंने तो उसको वही छोड़ दिया किनारे पे, लेकिन इतना दूर चले आए तो अब तक तेरे दिमाग से नहीं निकली वो बात, तू उसको भूल नहीं पाया। तो मुझे बताना कौन भ्रष्ट हुआ? जिसने बचाया वो नहीं, जो सोच रहा था गलत, सोच रहा था इन बातों को गलत तरीके से ले रहा था, वो भ्रष्ट हुआ था। जिसने स्पर्श किया वो नहीं। उसने कहा मैंने तो वही छोड़ दिया, तो अब तक लेके आया, यहां तक लेके आया उसको। अरे छोड़ उस बात को, दिमाग से निकाल दो। इसको कहते हैं विवेक। स्पर्श भी किया, हाथों में उठाया, लेकिन वही छोड़ गया और भूल गया जो स्पर्श हुआ था, जो हुआ था। बस उसने सोचा था मुझे इसको बचाना है और इसलिए छोड़ दिया भाई। और इसी तरह ये जो साधना होती है, ये साधना मन की होती है। स्विच ऑफ है, मेरा खुद का फोन स्विच ऑफ है। साधना मन से होती है। किसी दिन अगर हमारा उपवास हो और अगर हम खाने के बारे में ही सोचते रहे तो कहाँ का उपवास हो गया। भोजन के बारे में सोच रहे थे तो कहाँ का उपवास हो गया। लेकिन 2 बार भोजन करने के बाद अगर भोजन की जो आसक्ति है उसको भूल जाते हो तो आप व्रत कर रहे हो, आपका उपवास है। व्रत मन से किया जाता है और इसीलिए ये साधना मन की है, मन से की जानी चाहिए। मुक्ति का मतलब है मुक्त हो जाना, बंधन से मुक्त हो जाना। करना आपको संसार जरूरी है, लेकिन उसके बंधन से मुक्त हो जाना, उसमें ही अटकना मत। कमल जैसे अगर कमल को खिलाना हो तो शुद्ध जल में नहीं खिलता, कीचड़ में खिलता है। लेकिन कीचड़ को त्याग कर ऊपर उठ जाता है
आपको भी रहना संसार में है। देखो वो कमल भी मुक्ति को पा चुका है, कमल मोक्ष को पा चुका है, क्योंकि जो गंदगी थी, जो कीचड़ था, उसका त्याग कर दिया और ऊपर उठ के आ गया। आपको भी रहना संसार में है, कमल जैसा ऊपर उठ के आना। विवेक जिसके पास है वो जीते जी मुक्ति को पा रहा है। जो हर हाल में खुश है, निंदा भी हो रही है तो खुश, स्तुति भी हो रही है तो खुश, दुख सुख समक्षमी, जो सुख दुख में सम रहता है, परेशान नहीं होता, वो हर व्यक्ति मुक्ति को पा चुका है। और आखिरी में कह दूं, ये मुक्ति वाली बात मृत्यु के बाद की नहीं, मृत्यु के पहले की है, मृत्यु के पहले की है। हम मुक्ति को क्यों ना अनुभव करें जीते जी, हम मोक्ष को क्यों ना जीते जी अनुभव करें। पता नहीं कहाँ से क्या क्या बातें आप लोग सुन लेते हो और भागम भाग करते हो। एक दिन एक गुरु के पास एक चेला आया, बोले महाराज मेरे खेती में पानी नहीं है तो कुआं खोदना है, आप बताना जरा कौन से कोने में खोदना चाहिए और कितना फीट खोदना चाहिए। तो बोले ईशान कोने में खोद दे और 100 फुट खोदना, पानी मिल जाएगा। ठीक है। 8 दिन के बाद वो भगत वापस आया, बोले महाराज जब काम हो जाता है ना तो लोग वापस नहीं आते, नहीं होता तो आ जाते। जैसे कोई मानता रखते हो और कोई आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो 1 साल भी मानता पूरी नहीं होती, आपकी बाधा पूरी नहीं होती। लेकिन अगर पूरी ना हो तो बार बार आके महाराज को बोलोगे महाराज बाधा रखी थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत चालाक होते लोग। महाराज के पास आया, महाराज को बोला महाराज पानी तो लगा नहीं, आपके वाणी का क्या हुआ, आपके भविष्य का क्या हुआ। महाराज ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, तूने किया क्या वो तो बताना जरा। बोले मुझे जल जल्दी चाहिए था, पौधे सूख रहे थे, तो मैंने क्या किया, 100 फुट खोदने के लिए आपने बोला था तो मैंने 10 जगह 10-10 फुट खड्डा खोदा। ले तो महात्मा ने कहा 10-10 फुट के 10 जगह खड्डे खोदे तो मारा वाला एक ही जगह अगर 100 फुट खोद देता तो जल मिल जाता। बात समझ में आ गई। हम जो छो हम जो रा कि नहीं समझन पड़े रही तो हारू है। थोड़ी थोड़ी गुजराती और यहाँ की भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है अभी। यहाँ की खिचड़ी जब से चालू हो गई। पांजो कच्छ, पांजो कच्छ बोलते, मारो कच्छ, कच्छी गुजराती में पांजो कच्छ। एक ही जगह अगर 100 फुट खड्डा खोद देता तो पानी मिल जाता, जल मिल जाता, लेकिन 10 जगह खोदते रहा। ये गुरु के पास जाए, वो गुरु के पास जाए, ये भगवान को पकड़े, वो भगवान को पकड़े। महादेव ने काम नहीं किया तो राम मंदिर में, राम ने काम नहीं किया तो कृष्ण मंदिर में। जैसे आप चालूपना करते हो ना, चालाकी करते हो तो भगवान भी करते। एक दिन एक आदमी भगवान राम के मंदिर गया, बोला हे राम जी भगवान मेरी पत्नी खो गई है, जरा मदद करना। राम जी प्रकट हो गए और बोला तू मेरे मंदिर में फिर क्यों आया। बोले मेरी पत्नी खो गई है ना, आप बताओ क्या करूं। बोले हनुमान जी के पास जा, मेरी भी उसने ढूंढ के लाई थी। ये तो राम के लिए आसान था, लेकिन राम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि राम को पता है अरे ये कोई इंटरेस्टेड आइटम नहीं है, ये टाइम पास है। ये सबके साथ, ये महादेव के साथ थोड़े दिन
थोड़े दिन गुजारेगा, थोड़े दिन कृष्ण के साथ, थोड़े दिन राम के साथ। अगर राम से जुड़े हो, कृष्ण से जुड़े हो, लक्ष्मी नारायण के साथ जुड़े हो, निष्कलंक नारायण के साथ जुड़े हो ना, तो इतना इतना अपने आँखों में उसके दीदार को भर देना कि गधे के ऊपर नजर जाए तो समझना निष्कलंक नारायण है, एक कुत्ते के ऊपर नजर जाए तो समझना निष्कलंक नारायण है। जो भी दुनिया में आपको दिखाई दे समझना है जंदा कायम देव पाया, कायम निष्कलंक नारायण पाया। पहले हम मिलते थे ना, हमारे वडील एक दूसरे को मिलते थे, कहते थे साहे जंदा। साहे मतलब दो अर्थ होते, साहेब जिंदा, ऐसा भी बोलते, साहेब जिंदा, ये पहले बोलते थे साहेब जिंदा। फिर सामने वाला कहता था कायम देव पाया। कहाँ कहाँ कहते हैं हे जिंदा, फिर सामने वाला बोलेगा कायम देव पाया। कितनी बड़ी सोच हमारे सदगुरुदेव ने दी, साहेब जिंदा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो साहेब है दुनिया का, जो मालिक है, साहेब शब्द का प्रयोग किया हमारे सदगुरुदेव ने भगवान के लिए। कौन सा शब्द बोला? साहेब। ये जो साहेब है वो साहेब कोई वैकुंठ में नहीं है, जो जिंदा आदमी दिखाई देता है, जो चैतन्य आपको दिखाई देता है, जो जीव प्राणी मात्र आपको दिखाई देता है, साहेब जिंदा। वो जिंदा है, वो जीवंत है। जो संत भी जो समाधि लेते ना, तो हमारे अंदर एक भाई बैठा है, वो पहले गलत सोचता था समाधियों के बारे में, लेकिन खेड़ ब्रह्मा मेरी उसकी मुलाकात हुई, अब कल मिलने आया था, तो उसने उसका अनुभव बताया कि हृदय से जब वो प्रेरणा पीठ पिराना गया, सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज के समाधि के पास बैठा, और तब उसने जो अनुभव किया जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उसको जब जो वाइब्रेशन वहां से मिला, जो प्रसन्नता मिली, कभी मिली नहीं थी। पहले शंका थी, इसके लिए नहीं मिला। अब जब मैंने उसको शंका निकाल दी, और शंका निकालने के बाद जब गया तब वहां बैठा ना, तो उसने अनुभव बताया। अभी चैत्र शुद्ध 20 में उसने कहा कि हम गए थे। तो ये जो संत महात्मा है, ज्यादा से ज्यादा इन महात्मा जो तपस्वी है उनको भूमिदाग दिया जाता है, समाधि दी जाती है। उसका कारण ये है कि उनके जो व्यूज है, उनके अंदर जो चैतन्य है, उनके अंदर जो पावर है आध्यात्मिक, उन्होंने साधना की जो ताकत है, अग्नि के साथ वो जले नहीं, इसीलिए उनको समाधि दी जाती है, क्योंकि वो हमेशा के लिए वो जो ताकत है, वो जो पावर है, वो भक्तों को मिलती रहे। उनके शरीर में उनकी इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी ऊर्जा होती है उनमें। आज भी आप जो भी बड़े बड़े संत महात्मा है, उनके समाधि के पास जाके देखना। कल मैंने बोला था ज्ञानेश्वर महाराज, उनके समाधि के वहां तो साइंटिस्ट आए थे बड़े बड़े, और वहां का वाइब्रेशन जब लिया उन्होंने, तो सारी दुनिया में चर्चा हुई थी कि ऐसा वाइब्रेशन कई दुनिया में नहीं मिला। जहां भी समाधियों के इन संत श्रेष्ठ, कोई भी सांप्रदाय का, कोई भी धर्म का, जाति का महात्मा हो, जिसने जगत के कल्याण के लिए काम किया, स्वार्थ के लिए नहीं, ऐसे किसी भी महात्मा की समाधि के पास जाकर बैठना, अनुभव करना, एक नई ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि उनके जीवन में कोई कलंक नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई मत्सर नहीं, बस कल्याण ही कल्याण, पवित्रता उनके जीवन में होती है। तो उनके बाद भी उनका जो चैतन्य है, आज मुझे बताना, कई लोग तो आप मुझे बच्चों को लेकर आते हो, महाराज ये बाबा ने दिया हुआ है, ये बाबा ने दी हुई है, महाराज ये बाबा ने दी। बहुत परेशानी थी, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था अब संतान नहीं होगी, लेकिन जब पिराना गए, बाधा रखी, मानता रखी, अर्जी की, तो देखो ये बाबा ने दे दिया। तो आज भी तो काम करवा रहे आपका, तो कहां से कैसे काम करवा रहे? क्योंकि उनके साथ उनका जो भौतिक पंच भौतिक शरीर था वो गया, लेकिन उनकी ऊर्जा आज भी समाधि के द्वारा आपके काम करवा रही है। आज भी शिरडी के साईं बाबा में जाना तो काम करवाते हैं, आज मिलते हैं बाबा। आज भी हर संत, कोई भी बड़े संत को आप देखो, आज भी भक्तों के काम करवा रहे हैं। तो उनकी जो पंच भौतिक शरीर है,
क्योंकि नाशीवंत है, वो खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा मरती नहीं है, ऊर्जा खत्म नहीं होती, ऊर्जा उनके बाद भी काम करवाती रहती है। तो इसीलिए भगवान भी फिर अपने साथ मस्ती करेंगे अगर आप भगवान के साथ मजाक करोगे। कृष्ण ने काम नहीं किया तो राम ने काम नहीं किया तो हनुमान। ऐसा नहीं, एक ही जगह जुड़ जाओ, एक ही जगह पे खड्डा खोदो, सब कुछ मिलेगा, ये एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। और वो कैपेसिटी तो आपकी होनी चाहिए, जो आपको पाना है, जो पाना है वो पाना है आपने। दूसरी बात कह दूं कि दुनिया में बहुत अच्छी चीजें हैं, जहां से अच्छा मिले जरूर लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। राम को मानते हो तो कृष्ण के चरित्र को समझना, महादेव जी के चरित्र को समझना जरूर जरूर जरूरी है। लेकिन जैसे ही कोई पति अपने पत्नी के गले में मंगलसूत्र बांध देता है और तब से उस पत्नी को पता चल जाता है कि आज से ये मेरा पति है, उसको स्वीकार लेती है और उसकी नजर से किसी और को नहीं देखती, और को अलग अलग तरह से देखेगी, लेकिन पति के रूप से तो उस अकेले आदमी को देखेगी जिसका मंगलसूत्र गले में बांधा है। इसीलिए इसी तरह एक पतिव्रता श्री की तरह जिस भगवान को मानते हो तो उस पतिव्रता धर्म के अनुसार उस भगवान को मानना जरूरी है। जाना, अगर निष्कलंक नारायण भगवान को मानते हो तो और सारे मंदिरों में जरूर जाना, मनाही नहीं है। आप मुझे सुन रहे हो और संतों की कथा होगी उसमें भी जाना, जरूर सुनना सबको, जहां से अच्छा मिले सब लेना चाहिए। लेकिन अपना जो मूल है, अपनी जो परंपरा है, गुरु परंपरा, उसको भूलना नहीं चाहिए। घूमने के बाद जैसे सुबह घर से निकल जाते हो, घूम फिर के वापस घर में आ जाते हो, इसी तरह घर से जब निकलो तो जहाँ जहाँ अच्छा मिलेगा जरूर लेना, स्वीकारते रहना, लेकिन शाम हो गई आपके घर वापस आ जाना। नहीं तो दुनिया में अब तो ऐसा सब चक्कर चालो ही को आपको क्या बताओ। एक सियाड़ था, सियाड़ समझते हो? सियाड़ तो भूख लगी, अब करे तो क्या करे, तो एक तालाब के पास जाकर बैठा था, भूख लगी है क्या करे। तो तब क्या हुआ, एक मेंढक किनारे पे आया, जिसको गुजराती में डेढ़का बोलते है ना, मेंढक किनारे पे आया। अब उसने सोचा सियाड़ ने कि भूख लगी है, अब जब इसको खाने जाऊं तो ये तो निकल जाएगा अंदर, अब करे तो क्या करे। इस दृष्टांत को ध्यान से सुनना सब लोग, और समझ गए तो औरों को भी बताना। सियाड़ वो तालाब के किनारे बैठा, क्या करे। जब वो मेंढक बाहर आया तो मेंढक को क्या बोलता है पता है? अरे ये छोटे से तालाब में क्या कर रहा है तू, कितने बड़े बड़े तालाब पड़े हैं और यहाँ तो तेरी कोई व्यवस्था नहीं होगी। ये छोटे से तालाब में चल, बड़े तालाब में अगर जाना हो तो मैं ले जाऊं। बोले नहीं जाऊं, ठीक हो। अरे बोले तू देख तो ले, बड़े तालाब में कितनी मजा होती है, ये क्या छोटे तालाब में पड़ा हुआ है, वहां चल, तुझे देखना फिर क्या क्या मिलेगा, कितना खुश रहेगा तू, जो चाहिए प्रकाश देखने मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, चल। मेंढक ने सोचा अगर ये सियाड़ बोल रहा है तो क्यों ना हम बड़े तालाब में जाए, जहां बहुत मजा मिलेगी, मजा होगी। तो बोले लेकिन कैसे ले जाओगे? बोले चलो मैं ले जाता हूं, आपको मदद करता हूं। परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकार के लिए तो ये शरीर भगवान ने हमें दिया। तो जो मेंढक था उसके बोलने में आ गया, फिर बोला कि चलो मुझे भी बड़े तालाब में ले चलो। अब बड़ा बनना किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बड़ा बनना है, क्योंकि सियाड़ ने बोला था क्या बड़ा बनना नहीं चाहता, क्या कल्याण नहीं करना चाहता, तो चल। बोले ठीक है, फंस गया। अब सियाड़ ने मुंह में उसको पकड़ा, मेंढक को मुंह में पकड़ा और ले जाने लगा। अब मेंढक खुश था कि बड़ी तालाब में जाने मिलेगा।
आधे रास्ते में गया, जैसे आधे रास्ते में गया, सियाल ने मेंढक को खा लिया। भूख जो लगी थी, मेंढक तो पछताते पछताते मर गया। भूख मिटी नहीं, वापस तालाब के पास आया, दूसरा मेंढक बाहर आया। अरे वो देख कितना खुशी में है जिसको मैं ले गया था, तुझे भी जाना है? तू नहीं आ, तुझे नहीं मजा आएगी? तू भी चल, बहुत बड़ा तालाब है, देखो कितना खुश हो गया जब से बड़े तालाब को देखा, तुझे भी आना होगा तो चल। अब दूसरे मेंढक ने सोचा कि हमारा मोटा भाई હવે ત્યાં ગયા છે, પહોંચી ગયા છે, તો હવે આપણે જવામાં શું વાંધો है? महाजनो एन गतस्य पंथाः, जैसे बड़े लोग करते वैसे छोटे भी करते। तो वो गया तो चलो मैं क्यों ना जाऊँ, बोले मुझे ले जाओगे? बोले हाँ। तो सियाल ने उसको भी पकड़ा, आधे रास्ते में जाके उसको भी हजम करवा लिया। वापस आया तालाब के पास, तीसरे मेंढक को बोलता है तुझे नहीं जाना? अरे वो कितनी ऐश कर रहे, कितनी मजा कर रहे, तुझे नहीं आना? तीसरे ने सोचा कि दो गए तो फिर मैं क्यों ना जाऊं, उसको भी पकड़ा, आधे रास्ते में जाकर खा गया। एक 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 मेंढक कम कर रहा है और खुद का पेट भरे जा रहा है सियाड़। बात समझ में आ गई? ऐसे कई सियाड़ मिलेंगे आपको दुनिया में, आपके भोलेपन का फायदा उठाने वाले, आपकी सरलता का फायदा उठाने वाले बहुत सियाड़ मिलेंगे। कह रहे क्या रखा है इस परंपरा में, यहां आ जाओ। लेकिन मुझे बताना, आपने मेरी 2 कथा पहले भी सुनी, 2 से 3 कथा अभी भी सुन रहे हो, क्या कुछ कमी लग रही है इस परंपरा में? मैं तो 7 दिन इतनी सारी बातें करने के बाद जो सोच के आता हूं ये इतना देना है, तो बस वो 20% ही देता हूं, 80% तो वापस फैजपुर ले जाना पड़ता है। इतना है जो सोच के आता हूं नहीं दे पाता आपको। इतना सब कुछ है तो कहां क्या कम है? लेकिन हम कुछ पा नहीं सकते तो दोष देते हैं कि ये परंपरा में ये नहीं वो नहीं। अगर शिक्षा पत्री को समझना चाहो, ये सारी चीजें पहले तो देखो, आपको मुक्ति मोक्ष ध्यान ये सारी चीजें जरूर है ना, उसके पहले तो शिक्षा पत्री से शुरुआत करना। मेरा सवाल होगा आपके लिए, ध्यान में बाद में जाना, ये मुक्ति मोक्ष की बात में करना, पहले तो मुझे बताना जरा 100 नियमों का पालन करने वाला है कौन? और जो 100 नियम का, क्योंकि ये समाधि तो बाद में आती है, पहले तो यम नियम आते हैं। यम नियम का मतलब है शिक्षा पत्री। अगर योगाभ्यास करना चाहते हो, समाधि तक जाना चाहते हो, तो यम नियम से शुरुआत होती है। एम नियम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले तो यम समझना जरूरी है, नियम समझना जरूरी है, प्राणायाम पवित्रता जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो यम नियम, अगर यम नियम आपको पता ना हो तो शिक्षा पत्री यम नियम है। तो शिक्षा पत्री का जिसने अगर 100% पालन किया होगा, जो पालन करने की तैयारी रखता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। शिक्षा पत्री के 100 नियम आपको धीरे धीरे समाधि तक ले जाएंगे, विरक्त बना देंगे, विवेकी बना देंगे। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शिक्षा पत्री आपको इंसान बनाती है, शिक्षा पत्री आपके अंदर इंसानियत भर देती है, शिक्षा पत्री आपके अंदर, हृदय के अंदर करुणा भर देती है, भाव भर देती है, भक्ति भर देती है, सब कुछ मिल जाता है। उन 100 नियमों का पालन हमें करना नहीं है। अगर कोई ऑपरेशन करवाना होगा, आपका पेट दुखता है, आपको ऑपरेशन करवाना है, एडमिट कर दिया डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने अगर चेकिंग की और बीपी पॉजिटिव निकला, शुगर पॉजिटिव निकली, तो क्या ऑपरेशन होगा? जिसको ऑपरेशन करवाना है, अगर उसकी बीपी हाई लो होती है या उसके शरीर में शुगर ज्यादा है, क्या ऑपरेशन होगा? तो ऑपरेशन से पहले कौन सी ट्रीटमेंट होगी? अगर बीपी होगा तो कंट्रोल करना पड़ेगा पहले, अगर शुगर होगा तो शुगर कंट्रोल करनी पड़ेगी, उसके बाद में ऑपरेशन होगा। अगर शुगर है और फिर ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन सक्सेस होने वाला नहीं है। सही बात है ना? अच्छी बात है ना?
તો બોલવાનું ને તમારે. ખોટી વાત હોય તો ખોટી વાત એ બોલી દેવાનું, સાચી વાત હે તો સાચી વાત એ બોલી દેવાનું. સાચું એ હાલશે ને એવું બોલી દેવાનું. खोटी हो तो खोटी, आमा शू वांधो है. अगर शुगर है शरीर में तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, शुगर नॉर्मल करनी पड़ेगी. इसी तरह ये जो मुक्ति का ऑपरेशन है, ये जो मोक्ष का ऑपरेशन है, इसके अंदर अगर शुगर है अहंकार की, अभिमान की, निंदा की, ईर्ष्या की, अगर ये शुगर है शरीर में तो ऑपरेशन मुक्ति का नहीं हो सकता. और मुक्ति के ऑपरेशन से पहले तो शिक्षा पत्री का आचरण करके, शिक्षा पत्री की ट्रीटमेंट करके लेकर फिर आपको ये शुगर नॉर्मल करनी पड़ेगी. ईर्ष्या निंदा खत्म करनी पड़ेगी, अहंकार खत्म करना पड़ेगा, अभिमान खत्म करना पड़ेगा, तब जाके अगला ऑपरेशन सदगुरु करवा देंगे आपका. इतने देरी से थोड़ी चलती है टाली बजाना. तब बजनी चाहिए टाइम पे. तो शिक्षा पत्री हमें इंसान बनाती है, सारे ऑपरेशन शिक्षा पत्री हमारा करवाती है. कल हमने कथा में सुना सीता स्वयंवर, सुंदर ऐसा प्रसंग. तो वही जनक राजा के घर पे लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत तीनों की शादी भी वही एक जगह, एक ही घर के पटेल बन गए सब. रिश्ता अच्छा लगा, विवाही अच्छा लगा दशरथ जी को, तो बोले यही रिश्ता जोड़ दे. और एक बात, अगर आपको आनंद से जीवन जीना है तो ये बाकी सारी चीजें छोड़ दो. अपने विवाही के साथ अच्छा रिश्ता रखना, अपनी पत्नी के पति के साथ, विवाहन के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने सास के साथ देखना जीवन कितना सुंदर है. क्यों नफरत करते हो? यहाँ इनसे नफरत करवाना, परिवार के लोगों से नफरत करवाना और दूसरी जगह ध्यान करते बैठना, ये कोई जीवन नहीं होता. ये प्यार है ना, यही मोक्ष है. ये जो प्रेम करते हो एक दूसरे के ऊपर, आपके बोलने से अगर किसी को प्रसन्नता मिलते तो समझना मोक्ष मिला आपको. किसी के बोलने से आपको प्रसन्नता मिल रही हो तो समझना, आपके व्यवहार एक दूसरे के साथ अच्छे हो तो समझना मोक्ष मिल ही चुका है, बाकी नहीं. एक आनंद से जीवन जीना, एक अच्छी तरह जीवन को जीना जिसमें प्यार भरा हो. शादी करके जब ये जानकी और सब बहुएं अयोध्या में पहुंची तो माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी और ये बहुओं का इन्होंने स्वागत किया. माता कौशल्या, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ सामने खड़ी है. आने वाली बहुओं का स्वागत किया और कहा आप हमारी बहू नहीं हो, बेटी हो. बेटी करके स्वीकारा. तो इन बहुओं ने कहा कि आपने अगर बेटी माना है तो हम भी बहू नहीं, हम भी आपको सास नहीं, हम आपको मां समझेंगे. और घर में प्रवेश हुआ. एक एक दिन वहां पर गुजरने लगा. घर में आनंद था क्योंकि बहू और सास दोनों के रिश्ते में गहरावा था, एक गहरापन था सासू और बहू के रिश्ते में. एक याद रखना, अपनी बेटी से जितना लगाव रखते हैं ना, उतना लगाव अपने बहू से भी रखना जरूरी है. और बेटी से तो लगाव हो ही सकता है, बेटी है, बचपन से साथ में थी, लेकिन उतना ही लगाव जो और औरों की बेटी थी, लेकिन आपको अपना मानकर खुद का घर बार छोड़ दिया और आपके घर पे आई और उसके ऊपर भी बेटी जैसा भाव आ गया तो भगवान राजी राजी हो जाएगा आपके ऊपर. बहुत कठिन होता है, उतना ही भाव उसके ऊपर आना बहुत कठिन होता है. और इसी को साधना समझना. और इस साधना में अगर पास हो जाते हो तो भगवान राजी हो जाते. इसीलिए यहाँ सासू और सून का भी कोई झगड़ा नहीं था. और आज की बात करूं तो यही सारे झगड़े शुरू है हर घर में. अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ तो ठीक है, वो उधर की बात है. अभी सब लोग भी सुन रहे तो कहाँ का नाम बताए, बोले वहां का.
यहाँ तो मैंने देखा जो बहुएं हैं सब, वो सास को कितना अच्छा रखती है, सास भी बहू को कितनी अच्छी रखती है। ऐसी सास तो हमने कहीं देखी नहीं, ऐसी बहू कहीं हमने देखी नहीं। इतना प्यार आप दोनों में यहाँ पर दिखाई देता है। और भगवान को प्रार्थना करते हैं इनके प्यार को नजर न लगे किसी की। और ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता भगवान को मिलाता है। एक दिन एक बहू ने खिचड़ी बनाई, सास खाने बैठी, शुरू हुआ भोजन सासू माँ का, नमक बहुत था, फेंक दी थाली। खिचड़ी बनानी आती, खिचड़ी नहीं बना भी सकती तू? गुजराती बोलती है એટલે અહીંયા नहीं जैसे कोई खिचड़ी नहीं बनावी सके तू? आटलू नमक ना खाए? इतना नमक डालते खिचड़ी में, थाली को फेंक दिया। सासू माँ माफ करना, अब अगली बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरे दिन वापस खिचड़ी बनाई। अब तो फिक्स हुआ कि वो कच्छ में की होगी, क्योंकि दूसरे दिन भी शाम को खिचड़ी बनी, दूसरे दिन भी खिचड़ी बनी शाम को। अब दूसरे दिन भी जब भोजन करने बैठी सासू माँ, तो थाली फेंक दी। बोले सासू माँ आज क्या हुआ? बोले नमक ही नहीं है इसमें। सासू माँ अभी डर के मारे नमक कम हो गया। अभी कल इनको बुलाया तो मैंने बोला घबरा घबरा के क्यों बजा रहे हो? बोले आपसे डर लग रहा है। मैंने बोला यार डरना छोड़ दो, अच्छा सा बजाओ। डर के मारे नमक कम हो गया, डर के मारे गलती से बजा रहे, गलत गलत बजा रहे। मैंने बोला डरना क्या है? बोले सब लोग देख रहे, इतने दुनिया भर में हमें लगता है कि हमसे कोई गलती ना हो, इसके मारे भूल कर रहे। मैंने बोला वो निकाल दो दिमाग से, हमें तो मस्ती करनी है, हमें तो औरों के लिए नहीं खुद के लिए कथा करवानी है। तबला बजाना हो तो खुद के लिए बजाना, कभी औरों के लिए नहीं, तो अच्छा बजता है। गाना हो तो अपने लिए गाना, औरों के लिए नहीं, तब गाना अच्छा बनता है। इसलिए हम भी कथा करते तो आप सबके लिए थोड़ी ना, हम तो लक्ष्मी नारायण के लिए कथा करते, जिनको सामने बिठाया है। ये कथा का, श्रीमद् दशावतार कथा का नियम है। ये कथा लक्ष्मी नारायण के लिए की जाती है। मूलबंध में इसका प्रमाण है कि जब कथा हो तो कथा के सामने एक मुख्य यजमान को बिठाना, श्रोता को बिठाना, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में बिठाना, और जो भी इस दशावतार की कथा को करेगा वो वक्ता ये कथा लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए करेगा, उसकी तृप्ति के लिए करेगा, लोगों को अच्छा लगे इसके लिए नहीं, उनके लिए कथा होगी। लक्ष्मी नारायण का स्थान पहले से है, और लक्ष्मी नारायण तो सृष्टि के मूल में है, सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है, इसलिए लक्ष्मी नारायण को प्रतीक माना गया। और प्रतीक ये आज नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। मैं बचपन से कथा कर रहा हूं, जब मैं 15-16 साल का था तब से हमारे गुरुजी ने बिठाया। तब तो कथा नहीं कर पाते थे, तब कथा चालू हो गई तो ऐसा नीचे देखते थे। हमारे गुरुजी बोलते सामने देख के कथा करना। मैंने बोला सामने देखूं तो कथा बंद हो जाएगी, अगर कथा चालू रखवानी है तो ऐसे ही होगी। तो ये तो सदगुरु की करुणा है कि टाइम पे पूरा पूरा वो सब दे दिया उसने, जब समय था, जब मांग थी समय की। नहीं तो पहले ये क्षमता हमारी नहीं थी। तो क्या बता रहे थे? लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्मी नारायण जो है वो हम जब 15 साल के थे ना, तब के भी मेरे कुछ फोटो वीडियोग्राफ है, तब के भी, तो उसमें भी पहले से ये परंपरा है। ये ऐसा नहीं कि आज हम यहाँ कच्छ में आए, गुजरात में आए तो यहाँ हमने परंपरा चालू करवा दी, या भरोसा नहीं होगा तो ये जो ग्रंथ है ना उसमें देख लेना, जो फैजपुर से ग्रंथ छपा हुआ है उसमें देख लेना। वो ग्रंथ मेरे जन्म से पहले छपा है, ये महत्वपूर्ण बात है। मेरे जन्म से पहले छपा है ग्रंथ, जो जगन्नाथ महाराज जी ने छपाया, प्रिंट किया, वो मेरे जन्म से पहले प्रिंट हुआ। और उसमें आज भी पहले पन्ने पर आपको अगर
पढ़ना हो तो पन्ने पर लिखा है, पहले पन्ने पर, कि ये कथा कैसी करनी चाहिए, व्यासपीठ कैसा होना चाहिए, सामने लक्ष्मी नारायण को प्रतीक स्वरूप मानते हुए बिठाकर उनके लिए वक्ता ने कथा करनी चाहिए। ये आज भी इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। फोटो निकाल के व्हाट्सएप कर दूंगा आपको पेज का, क्योंकि आजकल कैसे ना प्रमाण देना पड़ता है सब चीजों का, तभी लोगों को बात सच्ची लगती है। इसलिए ये आज की परंपरा नहीं, जो आज हम लक्ष्मी नारायण को प्रतीक स्वरूप यहां बिठाते, वो तो पहले से परंपरा चली आ रही है। तो ये कथा जो है लक्ष्मी नारायण के लिए की जाती है, उनको प्रतीक माना जाता है, और उनके लिए कि उन एक आदर, एक श्रद्धा कि ये भगवान के लिए कथा हो रही है, किसी और के लिए नहीं। मैं आपके लिए कथा, आपको खुश करने के लिए कथा करूं तो मजा नहीं आएगी आपको, लेकिन जब मैं मेरे लिए और मैं भगवान के लिए कथा करने की कोशिश करूंगा तो फिर आपको उसका आनंद आएगा। ये भाव वक्ता के वाणी में होना चाहिए कि ये कथा भगवान के लिए हो रही है, अपनी वाणी की प्रसन्नता के लिए हो रही है, हृदय की चित्त की प्रसन्नता के लिए हो रही है। तो इसी तरह जो सास ने थाली फेंक दी ना, वो वहां बैठी है, अभी गई नहीं। तो पहले नमक ज्यादा हो चुका था तो थाली फेंक दी, दूसरे दिन डर के मारे नमक कम हुआ तो भी थाली फेंक दी। अब बहू ने कहा, सासू माँ अब आगे नहीं होगा, मुझे माफ करना। बोले ठीक है। तीसरे दिन शाम का समय वापस खिचड़ी बनाई। तीसरे दिन शाम को खिचड़ी बनाई, जब सासू माँ भोजन करने बैठी फिर थाली फेंक दी। अब तो बहू चिंता में पड़ गई कि अब क्या हुआ। बोले सासू माँ आज तो बहुत ध्यान दे के खिचड़ी बनाई, सासू माँ आज क्या हुआ, क्यों थाली फेंक दी आपने। बोले 2 दिन से ऐसे क्यों नहीं बनाई। बोले आज की खिचड़ी अच्छी है। बोले है तो अच्छी, फेंक दी क्योंकि 2 दिन ऐसे क्यों नहीं बनाई। ऐसा नहीं चलेगा। आज तो अच्छी बनी, बेचारी सुधार कर रही है बनाने में, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर ये भी कोई सामान्य प्रकरण थोड़ी होता है बहू वाला। एक दिन सासू खिचड़ी खाने बैठी, 2-3 पत्थर निकले। बहू को बुलाया, क्या करती तू, कैसे भोजन पकाती है, इसमें 2-3 पत्थर निकले, आज बनाना नहीं आता। बराबर आंख नहीं दी भगवान ने, पत्थर नहीं देख सकती, 2-2 आंख दी भगवान ने। सासू माँ कोई बात नहीं, मुझे माफ करना, अगली बार ऐसे गलती नहीं होगी। लेकिन 2-2 आंख दी ना भगवान ने, दिखाई नहीं दिए पत्थर। माफ करना सासू माँ, नहीं होगा आगे। लेकिन 2 आंख दी, उसका क्या। अब गुस्से हो गई बहू। बोले ठीक है सासू माँ, मुझे तो 2 आंख दी, लेकिन आपको भी तो 32 दांत दिए ना, 2-3 पत्थर खा गई तो क्या बड़ी बात है। मैंने 2 आंख आपे तो तारे पण तो भगवाने 32 दांत आपे ने, 2-3 पत्थर खाई जाए तो शू वांधो है। पथराओ, इसको उकसाना मत, इसको उकसाओगे तो फिर तकलीफ में पड़ोगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, हम किसी के दोष नहीं निकाल रहे, लेकिन हमारे हृदय में प्रसन्नता हो, एक दूसरे के प्रति भाव हो, समझने की कोशिश हो। अगर जीवंत आदमी को समझ सकते हो ना, तो ही भगवान समझ में आएगा, तो ही भगवान समझ में आएगा, तो ही खुद तक पहुंच पाओगे। अगर जिंदे आदमी को समझ पाते हो तो सास और बहू की जो रिश्ता था वो अच्छी तरह वहाँ पर था। कौशल्या, जानकी सबके बीच में धीरे एक दिन निकलता गया। और एक दिन दशरथ जी अपने महल में स्नान के बाद थोड़ी तैयारी में थे। तैयारी करते करते बालों के ऊपर ध्यान गया, उसमें एक सफेद वाला केस
दिखाई दिया। जैसे सफेद केस दिखाई दिया तो भागते भागते वशिष्ठ जी के पास गए और कहा कि गुरुदेव, अब मेरे वानप्रस्थाश्रम का समय हो चुका है। अब हृदय में ऐसा लगता है कि मैं अब इसको त्याग दूं, राज्य को, राम को राजा बना दूं और मैं बस भगवान की भक्ति करूं। कथा ये कहती है कि दशरथ जी को आज जो बात पता चली, वो बात जिसको भी पता चल जाए जीवन में कि अब जीवन की शाम होने वाली है और शाम होने से पहले जो पाने आए थे उसको पाना पड़ेगा, ये बात जिसको पता चल जाए उसके जीवन का कल्याण है, उसको मनुष्य योनि मिलने का कुछ फायदा है। नहीं तो कई लोग बस संसार संसार और संसार ही करते करते मरते देखे गए हैं। लेकिन बात पता चली और इसीलिए हम इस कथा के माध्यम से आपको भी एक संदेश जरूर देना चाहते हैं कि अगर आप भी अगर इस बात को समझ रहे हो तो हमने भी धीरे धीरे अब कर्तव्यों को पूरा करने के बाद भगवान की ओर जाना चाहिए।